How are you all? I hope you're all doing great. So today we are going to start with the new chapter of class 9th, which is force and laws of motion, which is second chapter of physics. Okay, in physics it is second chapter, and वैसे this is 9th chapter. Okay. So guys, we are going to start with this force and laws of motion. A very easy chapter. We have already studied in previous chapter what is motion and all. Okay, what kind of motion the body is doing and the equation of motion. We have done the numerical part. So if you want to watch the previous video, I have given the link in the description box. You can check from there. And first of all, you have to do that chapter, then only you can understand this, because this is the detailed part of that chapter, previous chapter. So you need to do previous chapter pehle, and then you can do this. Okay, you will be able to understand this easily if you understand previous chapter. So let's start with this, guys. Okay, so we're starting with this chapter is forces and laws of motion, right? Force and laws of motion. So okay, we're going to start with this. Let's start this. फोर्स, सबसे पहले हमारा क्या एम है कि हमें क्या पता लगाना है कि व्हाट इज़ फोर्स. ओके, व्हाट इज़ फोर्स? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फोर्स. इन फिजिक्स अ फोर्स इज़ एनी इन्फ्लुएंस दैट कॉजेज अ फ्री बॉडी टू अंडरगो अ चेंज. ओके, फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फ्री बॉडी मीन्स कोई भी चीज़ है, लाइक कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको वो मूव करवाती है, उसको उसकी स्पीड अटेन करवाती है, एंड वो डायरेक्शन चेंज करती है और उसकी चेंज इन शेप. अगर एक बॉडी कोई मूव कर रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, एंड इट इज़ गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, सो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. उस पर फोर्स लग रहा है, वो तभी उस तरफ जा रही है. राइट, समझ आया? ओके, moving on to the next, which is okay, force again. Generally a push or a pull is known as force. Okay, generally हम एक push या pull को ही force कहते हैं. ठीक है, push या pull, अगर हम किसी चीज़ को push कर रहे हैं, उसकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, वो कहीं मूव कर रहा है, या फिर उसे हम पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो भी उसकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, तो दैट इज़ नोन एज फोर्स. पुश एंड पुल इज़ नोन एज फोर्स जनरली. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, examples of force. Here are some examples of force that you can do, like you can understand this. First, a girl is playing with a hockey stick. Okay, a hockey stick hits the ball forward. Okay, the girl is pushing the hockey stick, pushing the ball with the hockey stick forward. Okay, next is someone is compressing the ball. Okay, wait a minute, let me change the brush. Okay, yeah, so someone is compressing the ball. Next, the drawer is pulled. When we have a drawer, like हम लोग ड्रेसिंग टेबल में जाते हैं, when girls are going and doing makeup and all, उनको जाना है, वह ड्रॉर को पुल करती हैं. आपने देखा है, have you pulled the drawer? So that is also a force. हम उसे पुल कर रहे हैं. I told you push or pull is known as force. Okay, next is a trolley moves along the direction. हम लोग किसी मार्ट में जाते हैं, लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक ट्रॉली मिलती है. हमें ज़्यादा सारा स्टॉक लेना होता है, तो हमें ट्रॉली चाहिए होती है, राइट? सो ट्रॉली लेंगे हम, एंड देन हम उसे पुश करेंगे और इसमें सामान लेके जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ नॉर्मल एग्जाम्पल. यू वुड बी नोइंग दिस ऑल कि what is force and all. So this is basic examples so that the student can understand what exactly is force. Okay, moving on to next, types of force. Okay, there are two types of force, guys. Two types of force. They are balanced force and unbalanced force.
there are two types of forces, balanced and unbalanced. First of all, which is cause of rest? Balanced force. This is a cause of rest. कैसे? एक ऑब्जेक्ट पड़ा है बीच में, एक बॉक्स पड़ा है, इधर से भी कोई पुल कर रहा है, इधर से भी पुल कर रहा है. ओके, सपोज दो बंदे हैं. ओके, two people are standing, so one is pushing from this side and one is pulling from this side and other is pulling from this other side. So वो बीच में ही रहेगा ना. अगर वो दोनों इक्वल, लाइक उनका वेट इक्वल है एंड बॉडी मास इक्वल है, तो वो दोनों सेम प्रेशर से, सेम फोर्स से उसे पुल करेंगे. तो वो ऑब्जेक्ट है वो बीच में ही रहेगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, कि एक कोई मोटा सा इंसान खड़ा है और एक पतला सा कोई स्लिक सा बंदा खड़ा है, तो वो अगर उसको एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है ना, तो वो मूव करेगा. तो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स. या राइट, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स. This is a cause of motion. Okay, so moving on to next, which is force. Again हम थोड़ा force के बारे में पढ़ लेते हैं. What is force? Force is a vector quantity. Okay, force is a vector quantity. I told you in the first chapter what is vector, what is scalar. Okay, these are some basic terms you need to know. Vector quantity is that tells direction with magnitude. Okay, डायरेक्शन भी उसके साथ इसे हम बताते हैं, तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. राइट, इट इज़ द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन एंड डेक्लेरेशन इन ऑब्जेक्ट. आई टोल्ड यू डेक्लेरेशन, राइट? डेक्लेरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. एक्चुअली दिस टर्म इज नॉट यूज्ड मोर इन योर सिलेबस एंड ऑल, बट सम टाइम इट इज़ यूज. सो आपको पता होना चाहिए डेक्लेरेशन क्या होती है. इट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन. जब माइनस लग जाता है एक्सेलरेशन के आगे, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड डेक्लेरेशन. ओके, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए. नाउ व्हाट इज एम हियर एंड व्हाट इज ए हियर? ए तो आप लोगों को पता होगा, आई टोल्ड यू एक्सेलरेशन, है ना. पीछे भी हमने पढ़ा था ये एक्सेलरेशन. एंड व्हाट इज एम? एम इज मास. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, so this is formula of force you need to remember. Next is its unit is Newton. इसकी यूनिट क्या होती है? its unit is Newton. न्यूटन एक साइंटिस्ट है, हमें आपको पता है, आप न्यूटन को तो नहीं भूल सकते, बिकॉज ऑल द फिजिक्स इज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ न्यूटन. उसने एक एप्पल क्या देख लिया गिरता हुआ ट्री से, he made all physics. Okay, and this is an interesting subject too. So its unit is Newton. न्यूटन ने फोर्स दिया था, तो उसने अपने नेम से ही उसकी यूनिट रख ली. ठीक है, its unit is Newton. You have to remember this. Right guys? Moving on to next topic is linear momentum. Next topic is linear momentum. This is also a new term for you, have not studied earlier. So what is linear momentum? It is the product of mass and velocity. Okay, it is the product of mass and velocity of moving object is known as its linear momentum. कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी हम मास और इसकी वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट इज नोन एज मोमेंटम. ओके, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी टू. फोर्स भी हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी थी, और लीनियर मोमेंटम भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. सो जब भी आप इसे लिखेंगे, इसको हम P से डिनोट करते हैं. जब भी हम इसे डिनोट करते हैं तो इसके ऊपर हम ये साइन लगाते हैं. दिस इज वेक्टर. दिस मीन्स दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट इज P इक्वल्स टू mv. दिस इज फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है व्हाट इज लीनियर मोमेंटम. ठीक है, P इज इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी. easy for you guys. Okay, if you're liking my video and you're understanding what I'm telling you, so don't forget to subscribe. Okay, नहीं तो आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं मिलेंगे, एनिमेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगे. राइट, you have to subscribe for that. Don't forget to subscribe and press the bell icon for the notification, time to time notification. Okay, let's roll on to the next topic, which is inertia. A new concept too. What is inertia?
a property of an object by virtue of which it is unable to change its rest state or uniform motion known as inertia. ओके ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे रेस्ट स्टेट या मोशन स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है. इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर, वो कितना रेजिस्ट कर पा रहा है. ठीक है, एक बॉल है, एक हैवी बॉल, एक रबर बॉल है, एक स्टोन है. कौन सा अपने आप को ज़्यादा टाइम रेजिस्ट करेगा? टेल मी, कौन सा करेगा? स्टोन करेगा, है ना. तो आपको आगे क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं जो आप करोगे तो आपको और समझ आएगा. ठीक है, तो इनर्शिया इज़ समथिंग लाइक द रेजिस्टेंस पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट किसी चीज़ की रोकने की पावर. ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइक दैट. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. I hope you have understood this term, mass and inertia. Mass and inertia. Mass and inertia. Okay, what is mass and inertia? You know mass and inertia I have told you. Resistance power. Heavy objects have large inertia. Heavy objects has large inertia. तो अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था स्टोन और रबर बॉल का, स्टोन हैवी होता है या रबर बॉल? ऑब्वियसली स्टोन हैवी होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. ठीक है, एंड लाइट ऑब्जेक्ट हैज़ लेस इनर्शिया. ये समझ जाना. ये देखो ट्रक एंड एक कार का एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे. ट्रक का ज़्यादा इनर्शिया होगा या कार का? ट्रक का. ठीक है, लार्ज इनर्शिया होगा. सो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. यू नो मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. तो आपको याद रखना है कि हैवी ऑब्जेक्ट का लार्जर इनर्शिया होता है और लाइट ऑब्जेक्ट्स का लेस इनर्शिया होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सर ने लॉज दिए थे हमें, कुछ लॉज दिए न्यूटन ने, तो आप लोगों को वो याद रखनी है. ठीक है, सर इसाक न्यूटन made a systematic study of motion and proposed laws of motion which are known as Newton's law. Okay, these are known as Newton's law. So 3 laws दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ. 3 लॉज दिए थे हमें न्यूटन ने. ठीक है, तो फर्स्ट जो लॉ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं हम उसको. ठीक है, सेकेंड को बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड इज नोन एज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. ठीक है, आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा इसका नेम क्यों रखा है. ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं. अब लेट्स सी द फर्स्ट लॉ. एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट लॉ, नॉट रिटन लाइक दिस इज फर्स्ट लॉ. सो आपको पता है फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना. तो law of inertia on rest. So if an object is in rest, it will remain in rest, and if an object is in motion, it will remain in motion. ये एक हमारा फर्स्ट लॉ है जिससे एक हमारी बॉल है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, हमने उसे थ्रो किया ग्रासी फील्ड पे. जब हम उसे थ्रो करते हैं वो तब तक नहीं रुकती जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता. और कौन सा फोर्स उसे रोकता है? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. फ्रिक्शनल फोर्स ही लोग रोकेगा. इसको नीचे से फ्रिक्शन लग रहा है तो वो बॉल रुक जाती है. तो इन द सेम वे वैसे ही ये लॉ है. इस लॉ में जब तक ये बॉल मतलब जब तक कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा. इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा एक्स्ट्रा, वो अपना रेस्ट मतलब आई मीन द स्टेट नहीं चेंज करेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1 फॉर दिस. When a horse suddenly starts running, the rider falls backward. This is because of inertia. Okay, एक jerk लगता है हमें जब हम बैठे आराम से. हॉर्स जब एकदम से वो रन करना स्टार्ट कर देता है तो इस पर्सन की तरह हम गिर जाते हैं, बैकवर्ड हम फॉल कर जाते हैं, पीछे गिर जाते हैं हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डस्ट इज रिमूव फ्रॉम द हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग इट विथ स्टिक. ठीक है, ये कैसे होता है? जब एक कारपेट
अपने अपनी पोजीशन पे है, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस पर जब हम स्टिक मारते हैं तो जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको झटका लगता है और वो बाहर आ जाते हैं। वो तो रेस्ट पे ही है कार्पेट, तो उसमें से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि वो पर्सन फॉल कर गया था ना, गिर गया था ना वो उससे, हॉर्स से, क्योंकि उसको झटका लगा। सेम हियर, डस्ट पार्टिकल को झटका लगता है और वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कॉइन फॉल्स इनटू द टम्बलर व्हेन द कार्ड इज गिवन अ सडन जर्क। एक कार्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने एक कॉइन रखा है, ठीक है। तो जब व्हाट इज़ अ टम्बलर? टम्बलर इज टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है। तो जब एक टम्बलर के ऊपर हमने एक ग्लास रखा हुआ है और वो ग्लास जो कार्ड रखा हुआ है, कार्ड जब हम उसको हल्का सा पुश करते हैं, साइड करते हैं, जर्क देते हैं, तो वो जो कॉइन है वो इसके अंदर गिर जाता है। यू कैन सी हियर, ठीक है, इसके अंदर गिर जाएगा, ये था ना। तो ये इसके अंदर गिर गया एंड नाउ इसको भी जर्क लगा है कार्ड को, कॉइन अंदर चला जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अगेन इनर्शिया। Example 4, only the carom coin at the bottom of the pile is removed when the fast moving carom coin means striker hits it, है ना। जब हमने एक ये स्टैक बना के रखा हुआ है इसका, हम जब भी कोई वो रखते हैं, पाइल रखते, आई मीन स्टैक बना के रखते हैं कैरम कॉइन्स का, तो जब हम एक नीचे वाली किसी गोटी पे, है ना, किसी नीचे वाली गोटी पे हम मारते हैं तो वो पूरा स्टैक गिर जाता है ना। तो वो नीचे वाले को हटाते ही पूरा क्यों गिरता है? वो ऐसे ही आ जाना चाहिए था। समटाइम्स वो ऐसे भी आ जाता है, लेकिन समटाइम वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फ्रूट्स फॉल डाउन ऑन सैकिंग अ ट्री। सैकिंग अ ट्री मीन्स जब हम ट्री को हिलाते हैं, ऐसे हम ट्री को हिलाते हैं तो जो हमारा फ्रूट होता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको सडन जर्क लगता है, क्योंकि वो रेस्ट पे होता है, एकदम से उसे मूवमेंट करते हैं तो वो फॉल डाउन कर जाता है ना। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू विच यू कैन डू एंड प्रैक्टिस फॉर दैट। आई हैव गिवन यू दिस बिकॉज सो दैट आपको पता लग जाए कि आपको ये लेक्चर समझ आया है या नहीं। यू कैन चेक योर नॉलेज फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एट योर होम, एंड if a student is answering these all questions in the comment section, I will surely take your name in the next video and will appreciate you. So please do it in your do it in your notebooks, and you can send me personally on my mobile phone. I'll provide my number in the description box. Okay, you have to complete it and you have to send me on my phone, personal phone number I'm giving you for this homework, so you can do that. Okay, now you have to practice this at home, or you can write in the comment section everything, or you can click a picture and send me on my phone. Okay, text me. So thank you so much guys for watching my video. I hope you have liked my video and everything. So guys, we will be now doing with the next chapter of this. Thank you so much. If you like my video, don't forget to subscribe like this, okay, and don't forget to press the bell icon down below. Don't forget, I'm telling you again and again, because you will miss your videos. Okay, so bye bye and see you in the next video. Bye.